और आज से नए संसद भवन में सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है। I welcome the most popular, dynamic, honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who has been real force behind giving us the new temple of democracy in the shape of new state-of-art Parliament House building, which is emerging as a symbol of Atmanirbhar Bharat. I also welcome Honorable Speaker Shri Om Birla ji, Deputy Chairman Rajya Sabha Shri Harivansh ji, Leader of the Rajya Sabha Shri Piyush Goyal ji, Leader of the Opposition Rajya Sabha Shri Mallikarjun Kharge ji, Leader of the largest opposition party in the Lok Sabha Shri Adhir Ranjan Chaudhary ji, all my colleague ministers, other senior leaders, fellow MPs from both the houses of the Parliament, to this function which has been organized to commemorate the last sitting of both the House held yesterday in the respective chambers. Today onwards, our two houses of the Parliament shall have their sittings in the new Parliament House building. We all know that this central hall has witnessed transfer of power from Britain to Bharat, the formation and adoption of our constitution by the Constituent Assembly has been host to some very important occasions like rollout of GST, one tax, one nation, a finest example of cooperative federalism in our parliamentary democracy. There were 3 joint sittings of both the houses of the Parliament for resolving the deadlocks under the Article 108, that is the Dowry Prohibition Bill 1959, the Banking Service Commission Repeal Bill 1978, Prevention of Terrorism Bill 2002. You all know that Lok Sabha and Rajya Sabha were sitting in this building since 13th May 1952. Along with all my fellow members of the Parliament and other stakeholders of this Parliament, I am very happy and enthusiastic about the functions of the two houses of the Parliament henceforth from the new building, which is the symbol of new and emerging Bharat, paving the way for the developed nation as envisaged by Prime Minister by 2047. At the end, I would like to say that our journey so far is marked by excellent achievements, memorable experience, difficult challenges, remarkable milestones. As we go ahead, let us learn from our previous experiences so far and reaffirm our commitment to our historic democratic values and tirelessly work for the betterment of the person last in the queue. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब संबोधन हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी लोकसभा में कार्यकाल की दृष्टि से वरिष्ठतम वर्तमान संसद सदस्य श्रीमती मेनका गांधी जी को। Honorable Vice President, Chairman of the Rajya Sabha, Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Ministers, and esteemed colleagues of this distinguished House. Actually, I'm as surprised to be here as you are to see me. This is a historic day today. I'm proud to be part of this historical moment when a government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji has undertaken to repair the deep-rooted asymmetry and to give an equal share in India's future to all of us women. I'm grateful for the honor you have given me of speaking about my years in Parliament. We are going. हम सब ने मिलकर के पारित किया। संसद ने बीते वर्षों में
ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण किया। इसके माध्यम से हम ट्रांसजेंडर के प्रति सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी जो सुविधाएं हैं एक गरिमा के साथ प्राप्त कर सके, इसकी दिशा में हम आगे बढ़े। हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरूरतों को देखते हुए, उनके एस्पिरेशंस को देखते हुए ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो उनके लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी बन रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाने से लेकर वो विषय ऐसा रहा जो शायद ही कोई दशक ऐसा होगा कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो और मांग न हुई हो। आक्रोश भी व्यक्त हुआ, सभागृह में भी हुआ, सभागृह के बाहर भी हुआ। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम और इस महत्वपूर्ण काम में माननीय सांसदों की, संसद की बहुत बड़ी भूमिका है। जम्मू कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ वो महामूल्य दस्तावेज जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन करता है। आज जम्मू और कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और नए उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मौका अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये दिखाता है कि संसद के सदस्यों ने मिलकर के संसद के भवन में कितने महत्वपूर्ण काम किए हैं। माननीय सांसदगण, लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। एक के बाद एक घटनाओं की तरफ हम नजर करेंगे। हर घटना इस बात का गवाह दे रही है कि आज भारत एक नई चेतना के साथ पुनर्जागृत हो चुका है। भारत नई ऊर्जा से भर चुका है और यही चेतना, यही ऊर्जा इस देश के कोटि कोटि जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती है और संकल्प को परिश्रम की पराकाष्ठा कर करके सिद्धि तक पहुंचा सकती है। ये हम देख सकते हैं। और मेरा विश्वास है देश जिस दिशा में चल पड़ा है, इच्छित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। हम गति जितनी तेज करेंगे, परिणाम उतने जल्दी मिलेंगे। आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है, लेकिन पहले 3 में पहुंचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है।
और मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, जो जानकारियां प्राप्त होती है उसके आधार पर विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं, उसके आधार पर मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है, लेकिन दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुंच के रहेगा। भारत का बैंकिंग सेक्टर आज अपनी मजबूती के कारण से फिर एक बार दुनिया में सकारात्मक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भारत का गवर्नेंस का मॉडल, यूपीआई, डिजिटल स्टैक, मैं इस G20 में भी देख रहा था, मैंने बाली में भी देखा। टेक्नोलॉजी की दुनिया को लेकर के भारत का नौजवान जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व के लिए कौतुक भी है, आकर्षण भी है और स्वीकृति भी है। हम सब उस ऐसे कालखंड में हैं, मैं कहूंगा हम लोग एक भाग्यवान लोग हैं। ऐसी भाग्यवान समय में हमें कुछ दायित्व निभाने का अवसर आया है और हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि आज इंडियन एस्पिरेशंस उस ऊंचाई पर हैं जो शायद पिछले 1000 साल में नहीं रहे होंगे। गुलामी के जंजीरों ने उसके एस्पिरेशंस को दबोच के रखा था। उसकी भावनाओं को तहस नहस कर दिया था। आजाद भारत में अपने सपने संजो रहा था, चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन मिलकर के आज जहां पहुंचे हैं, अब वहां वो रुकना नहीं चाहता है। वो एस्पिरेशनल सोसाइटी के साथ नए लक्ष्य गढ़ना चाहता है। जब एस्पिरेशन सोसाइटी सपने संजोते ही हो, संकल्प लेकर के निकल पड़ी हो, तब पुराने कानूनों से मुक्ति पाकर नए कानूनों का निर्माण करके उज्जवल भविष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने का दायित्व हम सभी सांसदों का सविशेष होता है। संसद में बनने वाला हर कानून, संसद में होने वाली हर चर्चा, संसद से जाने वाला हर संकेत इंडियन एस्पिरेशन को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए। ये हम सबकी भावना भी है, कर्तव्य भी है और एक एक देशवासी की हमसे अपेक्षा भी है। हम जो भी रिफॉर्म करें, उसके मूल में इंडियन एस्पिरेशन सबसे सर्वोच्च पद पर होना चाहिए, प्राथमिकता पर होना चाहिए। लेकिन मैं बहुत सोच समझ करके कहना चाहता हूं, क्या कभी छोटे कैनवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या?
जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता, वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं कर सकते तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते। पचहत्तर साल का हमारे पास अनुभव है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी रास्ते बनाए उससे हमने सीखा है। हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है। इस विरासत के साथ अगर हमारे सपने, हमारे संकल्प जुड़ जाए, हमारा सोचने का दायरा बदल जाए, हमारा कैनवास बड़ा हो जाए, तो हम भी उस भव्य भारत के चित्र को अंकित कर सकते हैं, उस तस्वीर का खाका खींच सकते हैं, उसमें रंग भरने का काम हम भी कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को वो भव्य दिव्य मां भारती के हम उनको सुपुर्द कर सकते हैं। दोस्तों, अमृतकाल के 25 वर्षों में भारत को अब बड़े कैनवास पर काम करना ही होगा। अब हमारे लिए छोटी छोटी चीजों में उलझना वो वक्त चला गया है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए और हमसे शुरुआत होती है, हर नागरिक से शुरुआत होती है। और आज दुनिया में भी एक समय ऐसा था, लोग मुझे कहते थे, हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री लिखते थे कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरलिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी के जमाने में ठीक तो नहीं होगा। लेकिन 5 साल के भीतर भीतर देखा, दुनिया भारत के आत्मनिर्भर मॉडल की चर्चा करने लग गई है। और कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो, एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, एडिबल ऑयल, क्या इस देश को आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? कृषि प्रधान देश हम कहते हैं, खाने का तेल क्या देश बाहर से लाएगा? बहुत समय की मांग है कि हमें आत्मनिर्भर भारत को संकल्प को पूरा करना, ये हम सबका दायित्व है। उसमें दल आड़े नहीं आते हैं, सिर्फ दिल चाहिए, देश के लिए चाहिए। हमें अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की दिशा में ही कदम रखने होंगे। और मैंने एक बार लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना हो, हमारी प्रक्रिया में पर्यावरण पर कोई इफेक्ट ना हो, ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना हो। हमारे डिजाइनर, हमारे यहां निर्माण हो रही डिजाइन्स, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हमारे हस्तशिल्प, हर क्षेत्र में अब हमें वैश्विक मापदंडों को पार करने के इरादे से ही चलना चाहिए, तब जाकर के विश्व के अंदर हम अपना झंडा फहरा सकते हैं। मेरे गांव में मेरा सबसे अच्छा माल हो, इतनी बात नहीं चलेगी। मेरे राज्य में मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, मेरे देश में मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, दुनिया में मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा, ये भाव मुझे पैदा है। हमारी यूनिवर्सिटीज दुनिया के अंदर टॉप रैंकिंग में आए, अब इसमें हमें पीछे नहीं रहना है। हमारे शिक्षा जगत को नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिली है, एक खुलापन है, सर्व स्वीकृत बनी है। उसके सहारे अब हमें चल पड़ना है
और दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी थी वहां, और जब मैं दुनिया को कहता था 1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया की उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो उन सुनते ही रह जाते थे। लेकिन हमें उसे प्रेरणा लेनी है, पर प्राप्त तो अभी करके रहना है। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। आज हमारे देश का नौजवान खेल जगत के अंदर दुनिया में हमारी पहचान बना रहा है। टियर 2, टियर 3 सिटी से, गांव, गरीब परिवारों से, गांव से देश के नौजवान, देश की बेटे बेटियां आज खेलकूद के जगत जीवन में हमारा नाम रोशन कर रही है। लेकिन देश चाहता है और देश का संकल्प होना चाहिए कि अब खेलकूद के हर पोडियम पे हमारा तिरंगा भी लहराता होगा। हमें अब पूरा हमारा दिमाग क्वालिटी पर फोकस करना ही होगा, ताकि हम विश्व की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल और भारत के सामान्य मानव के जीवन में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के प्रति जो एस्पिरेशन बढ़ा है उसको हम एड्रेस कर पाए। और जैसे मैंने कहा कि हम भाग्यवान हैं कि हम उस समय काम कर रहे हैं जब समाज अपने आप एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है। हमारा और भी एक भाग्य है कि हम उस समय हैं जब हिंदुस्तान युवा देश है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा जन आबादी वाला तो देश बने ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी आबादी, उसमें भी सबसे युवा, ये पहली बार हुआ है। जिस देश के पास ये युवा शक्ति हो, युवा सामर्थ्य हो, तब हमें उसकी टैलेंट पे भरोसा है, हमें उसकी संकल्प शक्ति पे भरोसा है, उसकी साहस में हमें भरोसा है। और इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत का युवा अग्रिम पंक्ति में नजर आना चाहिए, वो स्थिति पैदा होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया को स्किल मैन पावर की बहुत बड़ी जरूरत है, और भारत विश्व की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने आप को सज्ज कर सकता है और उन आवश्यकताओं को पूरी कर करके दुनिया में अपनी एक जगह भी बना सकता है। और इसलिए विश्व में उनकी आवश्यकता के लिए किस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, किस प्रकार के उनको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, स्किल मैपिंग का काम भी चल रहा है। और उस स्किल मैपिंग के अनुसार भारत के अंदर स्किल डेवलपमेंट की तरफ हम बल दे रहे हैं, और जितना ज्यादा हम स्किल डेवलपमेंट पर बल देंगे, भारत के नौजवानों का सामर्थ्य विश्व में अपना डंका बजाने में कोई कमी नहीं रखेगा। और हिंदुस्तानी जहां गया है उसने अच्छाई की छाप छोड़ी है, कुछ कर गुजरने की छाप छोड़ी है। ये सामर्थ्य हमारे अंदर पहले से पड़ा हुआ है, और हमारे पहले जो लोग गए हैं उन्होंने इससे छवि भी बना के रखी हुई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों करीब 150 नर्सिंग कॉलेज एक साथ खोलने का निर्णय किया। पूरे दुनिया में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है नर्सिंग की। हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारे बेटे उस क्षेत्र में दुनिया में पहुंच सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं। पूरे विश्व की जरूरत है, और ये तो मानवता का काम है जिसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। आज मेडिकल कॉलेजेस का इतना व्यापक रूप से निर्माण, देश की आवश्यकता तो पूरी करनी ही करनी है, दुनिया की आवश्यकताओं में भी योगदान दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, हर छोटी चीज पर बारीकी से ध्यान देते हुए, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें भविष्य के लिए सही समय पर सही फैसले भी लेने होते हैं। हम फैसलों को टाल नहीं सकते हैं। हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर अपने आप को बंधित नहीं बना सकते हैं।
हमें तो देश के एस्पिरेशन के लिए हिम्मत के साथ नए निर्णय करने होते हैं। आज सोलर पावर के सफल मूवमेंट्स हमारी भावी पीढ़ी के लिए एनर्जी क्राइसिस से मुक्ति की गारंटी दे रहा है। आज मिशन हाइड्रोजन आने वाले दिनों में जो एनवायरमेंट की चिंता है, जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, उसके समाधान का रास्ता देने का सामर्थ्य रखती है। आज हमारा सेमीकंडक्टर जिस प्रकार से जीवन चलाने में हमारे हृदय की जरूरत रहती है, वैसे ही आज हमारी टेक्नोलॉजी चिप्स के बिना चल नहीं सकती और सेमीकंडक्टर उसके लिए बहुत अनिवार्य है। उस दिशा में हम आगे जाकर के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में कोई रुकावट ना आए और जीवन कहीं अटक न जाए, उसलिए एक बहुत बड़ी मात्रा में हम काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन, हर जिले में 75 अमृत सरोवर, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, बच्चे उनको कभी पानी के बिना तरसना न पड़े, इसकी चिंता हम आज कर रहे हैं। विश्व के बाजार में हमारा हर व्यापार कारोबार पहुंचे, कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे, लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक कम खर्च वाला बनाना, एफिशिएंट बनाना, उस दिशा में हम बहुत नीतियां लेकर के चल रहे हैं। आज समय की मांग है कि भारत का एक ऐसा भारत का हम निर्माण करें। नॉलेज, इनोवेशन, ये समय की मांग है और दुनिया में हमें अग्रिम पंक्ति में जाने का ये रास्ता भी है। और इसलिए पिछले हमने समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के बढ़ावे के लिए हमने रिसर्च और इनोवेशन का एक कानून भी पारित किया है, ताकि हमारे देश के नौजवानों को इस इनोवेशन के और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद देश के नौजवानों के मन में विज्ञान की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। हमें मौका गंवाना नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी को हमने रिसर्च और इनोवेशन के लिए पूरे अवसर देने हैं और इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए हमने एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की नींव रखी है। आदरणीय बंधुगण, सामाजिक न्याय ये हमारी पहली शर्त है। बिना सामाजिक न्याय, बिना संतुलन, बिना समभाव, बिना समत्व हम इच्छित परिणामों को घर के भीतर प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन सामाजिक न्याय की चर्चा बहुत सीमित बन के रह गई। हमें उसको व्यापक रूप में देखना होगा। हम किसी गरीब को कोई सुविधा दें, किसी समाज में दबे कुचले व्यक्ति को कोई सुविधा दें, वो तो सामाजिक न्याय की एक प्रक्रिया है। लेकिन उसके घर तक पक्की सड़क बन जाए ना, वो भी सामाजिक न्याय के लिए उसको मजबूती देती है। उसके घर के नजदीक में बच्चों के लिए अगर स्कूल खुल जाए तो वो भी उसको सामाजिक न्याय की मजबूती देती है। उसको बिना खर्च अगर आरोग्य में समय की जरूरत पड़े वो मिले, तब जाकर के सामाजिक न्याय की मजबूती मिलती है। और इसलिए जिस प्रकार से समाज व्यवस्था में सामाजिक न्याय जरूरत है, वैसा ही राष्ट्र व्यवस्था में सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। अब देश का कोई हिस्सा पीछे रह जाए, अविकसित रह जाए, ये भी सामाजिक न्याय के खिलाफ है। दुर्भाग्य से देश का पूर्वी इलाका, भारत का पूर्वी भाग जो समृद्धि से भरा हुआ है, लेकिन वहां के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे इलाके में जाना पड़ रहा है। ये स्थिति हमें बदलनी है। हमारे देश के उस पूर्वी भाग को, इलाका को समृद्ध बना करके सामाजिक न्याय की मजबूती भी हमने देनी है। असंतुलित विकास, शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन एक उंगली को भी अगर लकवा मार गया है तो शरीर स्वस्थ नहीं माना जाता है। भारत कितना ही समृद्ध हो, लेकिन कोई अंग उसका दुर्बल रह जाए तो भारत समृद्धि में पीछे है, मानना पड़ेगा। और इसलिए
हम सर्वांगीण विकास के पक्ष में, सामाजिक न्याय की उस ऊंचाई को प्राप्त करने के पक्ष में, दिशा में हमें आगे बढ़ना है। चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हमें उन चीजों को प्राप्त करना। और उसी लिए जो रणनीति कितनी सफल हुई है, 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पर विशेष काम किया, नौजवान अफसरों को लगाया गया, एक स्ट्रेटेजी बनाई गई। आज दुनिया उस मॉडल की चर्चा कर रही है और आज 100 डिस्ट्रिक्ट देश के कोने कोने में जो पीछे माने जाते थे, उसको बोझ मान लिया गया था। आज स्थिति ये बनी है कि वो 100 डिस्ट्रिक्ट अपने अपने राज्य में लीड कर रहे हैं, राज्य की एवरेज से भी ऊपर जा रहे हैं। और इस सफलता को देख करके, सामाजिक न्याय की इस भावना को मजबूत करते हुए 100 डिस्ट्रिक्ट में से आगे बढ़ करके अब जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए 500 ब्लॉक तक उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। और मुझे विश्वास है ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स है, वो एक विकास का नया मॉडल बनने वाले हैं। वो एक प्रकार से देश के विकास के एक नए ऊर्जा केंद्र बनने की संभावना रखते हैं और उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सांसदगण, आज विश्व की नजर भारत पर है। शीत युद्ध के समय हमारी पहचान कूटनिरपेक्ष देश के रूप में रही। उस समय की जो जरूरत थी, उसके जो लाभ होने थे, उस समय से हम गुजरे हैं। लेकिन अब भारत का स्थान कुछ और बना है और इसलिए उस समय कूटनिरपेक्ष की अवस्था आवश्यक होगी। आज हम उस नीति को लेकर के चल रहे हैं, जिस नीति को अगर हमें पहचानना है तो विश्व मित्र के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया से मित्रता कर रहे हैं, दुनिया हमारे में मित्र खोज रही है। ये शायद विश्व में एक भारत ने और दूरी नहीं, हो सके उतनी निकटता, उस रास्ते पर चल करके भी हम अपने विश्व मित्र के रूप में भाव आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसका लाभ आज भारत को हो रहा है। भारत आज दुनिया के लिए एक स्टेबल सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है और आज विश्व की ये जरूरत है और उस आवश्यकता की पूर्ति करने का काम G20 में भारत ग्लोबल साउथ के आवाज बनकर के उभरा है। ये बीज G20 समिट में जो बीज बोया गया है, मेरे देशवासी आने वाले समय देखेंगे कि वो ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, विश्वास का ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, जिसकी साया में आने वाली पीढ़ियां सदियों तक एक गर्व के साथ अपना सीना तान करके खड़ी रहेगी। ये मुझे विश्वास है। इस G20 में एक बहुत बड़ा काम हमने किया है, बायोफ्यूल अलायंस का। हम विश्व के नेतृत्व करते रहे, दिशा दे रहे हैं और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है और जिसका नेतृत्व ये हमारा भारत कर रहा है। छोटे छोटे महाद्वीप, उनके साथ भी आर्थिक कॉरिडोर बनाने की दिशा में हमने बड़ी मजबूती के साथ कदम उठाए हैं। आदरणीय बंधुगण, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, आज हम यहां से विदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं, संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये शुभ है, गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं। लेकिन मैं आप दोनों महानुभावों को एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक विचार आपके सामने रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिलकर के उस विचार पर जहां भी जरूरत पड़े मंथन करके कुछ निर्णय अवश्य कीजिए
और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। ताकि ये हमेशा हमारे लक्ष्य के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहाँ बैठा करते थे, गणमान्य महापुरुष बैठा करते थे। और इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए। मैं फिर एक बार इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां पर जो तपस्या हुई है, जन कल्याण के लिए संकल्प हुए हैं, इसको परिपूर्ण करने के लिए 7 दशक से भी अधिक समय से जो पुरुषार्थ हुआ है, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और नए सदन के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद से सीधे संबोधन, और कई सारी महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही है। और ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आप तक पहुंचा रहे थे कि उन्होंने क्या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो कही है। और बता दें आपको कि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले कही कि गुलामी की जंजीरों से अब भारत मुक्त हो चुका है, भारत का जुनून अब चरम पर है। तो आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन की कार्यवाही में लोकसभा और राज्यसभा में संसद भवन की पुरानी इमारत को लेकर चर्चा हुई। और जाहिर सी बात है कि आज का दिन संसद भवन के लिए, संसद के लिए और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। तो आपको बता दें कि नई इमारत में जो है, सबसे पहले पुरानी इमारत की अगर बात करें तो फोटो सेशन का कार्यक्रम आज हुआ, जिसके बाद पूजा पाठ के साथ जो है संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे। का एक बस्ता समेट कर निकलते हैं। कहीं ना कहीं एक भावना जो होती है, भाव होता है, उसे छोड़ने का जो एक दुख होता है। लेकिन चूंकि नए संकल्प है, नई यात्रा है, उसको तय करना है, तो उसकी भी एक खुशी है। तो ये एक सम्मिश्रण हो जाता है। और ये तस्वीरें देखिए आप, संसद भवन परिसर से एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए भी, मिलते हुए, बातचीत करते हुए, नई उम्मीदों और नए संकल्पों के साथ। ये देखिए संसद के पुराने भवन से प्रस्थान नए भवन की ओर। 75 साल की जो गाथा है उस पर एक तरह से विराम है और अब नए संसद भवन की तरफ ये प्रस्थान किया जा रहा है। और पुराने संसद भवन से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मंत्रियों और सांसदों के साथ नए संसद भवन की तरफ रवाना हो गए हैं। अब जिस तरह से इस विशेष सत्र की शुरुआत के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, जब उन्होंने अपना संबोधन भी दिया, जब हम 75 सालों की यात्रा पर बात कर रहे थे, संविधान सभा से लेकर जो 75 साल का संसदीय सफर रहा है, इसके बारे में चर्चा के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही कि कई मायनों में ये सत्र ऐतिहासिक होने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा इतिहास आज लिख दिया गया है। पुराने भवन को अलविदा कहकर नए भवन की तरफ प्रस्थान। बिल्कुल, आज देश के लिए संसद के नए भवन का अवतरण गौरव से भरा हुआ है। कहा भी जाता है कि आज का बोया हुआ कल दिखता है, और ऐसी ही आज की जो चुनौतियां हैं वो आने वाले अवसरों में बदल जाती हैं। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं।
तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ऐतिहासिक पलों को हम खुद भी कैप्चर कर रहे हैं और आप तक भी पहुंचा रहे हैं, जहां नए संसद भवन का श्री गणेश हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर उनके साथ मौजूद हैं और संसद के सेंट्रल हॉल से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फोटो सेशन के बाद अब नए संसद भवन में सभी सांसद जो है वो जुट गए हैं। दिल्ली से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आज जो है नए संसद भवन का श्री गणेश भी इस दौरान हो रहा है। इसके पहले आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि मेरी प्रार्थना और सुझाव है कि जब हम नए संसद भवन में जा रहे हैं तो इसकी यानी कि पुराना संसद भवन गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए और इसे सिर्फ पुराना संसद भवन कहकर छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सभी की सहमति हो तो इसे भविष्य में संविधान सदन के नाम से जाना चाहिए। इसके पहले भी हमने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनाया था। कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कही थी और ये पल जो है बेहद ही ऐतिहासिक पल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से सजावट यहाँ पर नए संसद भवन में की गई है और आज का दिन श्री गणेश का दिन है और इसी दिन संसद भवन का श्री गणेश भी यहाँ पर हो रहा है, नए संसद भवन का। तस्वीरें अब तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे और इस वक्त भी ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं दिल्ली से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पहले अपने संबोधन में नए संसद भवन को लेकर के कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही थी, जिसमें से कुछ बात भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा था कि टॉप 3 में पहुंचकर हमारा देश रहेगा, ये बात उन्होंने कही थी और जितने भी देशवासी हैं अपने संबोधन के दौरान उन्हें उनकर उत्साह वर्जित उन्होंने किया था और सभी को उन्होंने कहा था कि नए संसद भवन नए सत्र के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और भी दिग्गज नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और श्री गणेश जो है नए संसद भवन का यहाँ पर किया जा रहा है। आज गणेश चतुर्थी की भी शुरुआत हो रही है और इस हिसाब से भी आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण था और एक बार फिर ये दिन ऐतिहासिक बन चुका है क्योंकि नए संसद भवन का आज श्री गणेश हो रहा है। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे में भी एक अलग ही उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है, एक अलग ही एनर्जी उनके अंदर भी नजर आ रही है क्योंकि संसद का विशेष सत्र कई मायनों में वैसे ही खास होता है, लेकिन इस बार का ये संसद भवन जो है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। विशेष सत्र बेहद ही खास माना जा रहा है क्योंकि आज नए संसद भवन में कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी और इसके पहले फोटो सेशन जो है वो पुरानी संसद की बिल्डिंग से किया गया। तो अब पुरानी संसद को पूरी तरीके से अलविदा कह दिया गया है और कल की अगर हम बात करें तो पहले दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन और पुराने संसद भवन दोनों का ही जिक्र किया था। उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों के लिए भी अपनी बात रखी थी कि सभी की भावनाएं जो है पुराने संसद भवन से जुड़ी हुई है, लेकिन एक नए जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हम सभी नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे और इस लिहाज से ये संसद का विशेष सत्र यानी कि दूसरा दिन आज बेहद ही खास रहने वाला है। तो कई सारी महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान भी कही, जो सीधे संबोधन हम आप तक सुना रहे थे और उन्होंने पूरे देशवासियों के लिए कई सारी बड़ी बातें कर उन्होंने कहा कि अपने देश को हम तीसरे नंबर पर यानी कि टॉप 3 पर पहुंचा कर ही रहेंगे। ये बात उन्होंने कही है पूरे देशवासियों के लिए और पूरे देश के लिए। तो संसद का विशेष सत्र आज कई मायनों में खास होने वाला है और इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि अब जो है नए संसद भवन में सत्र चलेगा और नए संसद भवन में सत्र की शुरुआत होगी। तो पुराने संसद भवन से नए संसद भवन जाने की सीधी तस्वीर आपको हम दिल्ली से दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां पर पहुंच चुका है और उनके साथ तमाम दिग्गज नेता, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें और भी नेताओं की बात करें, तो सभी उनके साथ मौजूद हैं। फूलों से नए संसद भवन को सजाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आज संसद में उठाया जाएगा, लेकिन उसके पहले ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर तरीके से नए संसद भवन को यहाँ पर सजाया गया है। तो आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है और केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ हुआ। कल की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने G20 से भारत की साख को मजबूती मिली है, इसका जिक्र उन्होंने किया। और इसी के साथ ही अगर सत्र की हम बात करें तो इस सत्र में सरकार 4 बिल पेश करेगी, लेकिन सत्र की बात तो हम आगे करते ही रहेंगे और अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें जो है ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो कैमरों में कैप्चर की जा रही है और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कितनी बेहद ही सुंदर ये तस्वीर है, नए संसद भवन की तस्वीर
और उद्घाटन की तस्वीर भी अगर आपको याद होगी तो कितने भव्य तरीके से उद्घाटन किया गया था संसद भवन का, ये भी आपको याद होगा। और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख सकते हैं संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है, जिसकी शुरुआत अब नए भवन से की जाएगी, जिसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के साथ कही और कई सारी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की, अपनी भावनाएं भी उन्होंने पूरे देशवासियों के साथ साझा की है। और अगर पुरानी संसद बिल्डिंग की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि पुरानी बिल्डिंग की महत्व कभी भी कम नहीं होगी और इसी के साथ ही कई सारे ऐलान उन्होंने पुरानी बिल्डिंग को लेकर भी किए हैं। तो संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है और आज से संसद की कार्रवाई नए संसद भवन में आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान के प्रति लेकर नए भवन में प्रवेश कर रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं और उनके साथ तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। तो इसके पहले आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधन दिया था तो उन्होंने पुराने संसद भवन से लेकर के नए संसद भवन के सफर का जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया था और इस यात्रा में किसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसका जिक्र भी उन्होंने किया। कल की अगर बात करें तो दिया था और पूरे पत्रकार बंधुओं के लिए उन्होंने एक अच्छी बात कही थी कि सभी की भावनाएं भी यहाँ से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ही पूरे देशवासियों, सांसदों, मंत्रियों सभी का जिक्र उन्होंने किया था। और संबोधन के समय अगर आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी भावुक नजर आ रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पुराने संसद भवन को छोड़कर नए संसद भवन में अब सत्र की शुरुआत होने वाली है। खुशी की लहर भी उनके चेहरों में नजर आ रही थी, तो वहीं पुरानी संसद भवन को लेकर के जो भावुकता उनके चेहरे पे नजर आ रही थी ये भी आपने देखा होगा। कई सारी बातें उन्होंने कही है। तो आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सेंट्रल हॉल कार्यक्रम के लिए संसद भवन में लगातार तैयारियां चल रही थी और भारत की संसद की समृद्ध विरासत को मनाने और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए एक समारोह आज सुबह यानी कि 11 बजे से शुरू किया गया, जो कि राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की उपस्थिति में आयोजित किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन की ओर जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खुशी की लहर उनके चेहरों पर नजर आ रही है। एक नई उमंग के साथ, नए सत्र के साथ और नए भवन के साथ अब संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है। तो आज आप सभी को पता है कि गणेश चतुर्थी की भी शुरुआत हो रही है और गणेश जी हमेशा इस बात के लिए जाने जाते हैं और इस बात के लिए प्रसिद्ध रहे कि किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए, नई चीज़ों की शुरुआत के लिए सबसे पहले श्री गणेश किया जाता है और गणेश जी को पूजा जाता है। और आज इसी दिन शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि पुराने संसद भवन में सबसे पहले फोटो सेशन हुआ, जिसमें सभी सांसद मौजूद थे और इस फोटो सेशन के बाद पूजा पाठ हुई, जिसके बाद पूजा पाठ के साथ ही नए संसद भवन के नए सत्र की शुरुआत हुई और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। संबोधन की सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे थे और आपने सुना कि उन्होंने संबोधन में कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो उन्होंने कही है, जो सीधे देशवासियों के दिल को छू गई थी। तो अब आप तक सीधी तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। सभी मीडिया कर्मी भी यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं और संसद को, नए संसद भवन को कितने सुंदर तरीके से सजाया गया फूलों के साथ, ये भी आप देख सकते हैं। तो आज पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि नए संसद भवन की शुरुआत आज से हो रही है नए सत्र के साथ। 5 दिनों का ये सत्र है, आपको बता दें कि जिसका दूसरा दिन है और कल पुराने संसद भवन के से सत्र की शुरुआत हुई थी और कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ ही सत्र की शुरुआत की गई थी। हंगामेदार रहा था कल का सत्र अगर बात करें तो, और आज भी देखने वाली बात होगी कि सत्र की कार्रवाई शुरू होने पर कौन कौन से ऐसे विशेष मुद्दे हैं जो उठाए जाते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये बेहद ही ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, बेहद ही सुंदर तस्वीरें हैं, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों के साथ नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो लगातार संसद भवन को लेकर के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, कार्रवाई को लेकर भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल नई इमारत से नई इबारत इसे कह सकते हैं, क्योंकि बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं जब नए संसद भवन की शुरुआत हो रही है और एक नया इतिहास यहाँ पर रचने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी भावुकता के साथ उन्होंने कई सारी बातें देश को लेकर के कही थी और संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन की कार्रवाई में लोकसभा और राज्यसभा में संसद भवन की पुरानी इमारत को लेकर चर्चा हुई थी
और आज के दिन की अगर बात करें तो आज का ये दिन बेहद ही ऐतिहासिक होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद पैदल कदम ताल करते हुए संसद भवन की नई इमारत में प्रवेश कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, गणेश चतुर्थी के दिन से नई इमारत में कार्यवाही शुरू हो रही है और इसके अलावा सरकार के एजेंडे में महिला आरक्षण विधेयक है जिसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है, जिस पर आज चर्चा की जाएगी। बिल भी पारित हो सकता है, ये भी जानकारी आज सुबह से ही लगातार सामने आ रही है। फिलहाल कार्रवाई की बात तो करते रहेंगे, अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पे सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बाकायदा पैदल कदम ताल करते हुए संसद भवन की नई इमारत में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि पुरानी संसद से नई संसद की ओर अब प्रस्थान हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पक्ष और विपक्ष के सभी सांसद नए भवन की ओर प्रवेश करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी शामिल हैं और पीछे से कई सांसद नारेबाजी भी इस दौरान कर रहे हैं। यहाँ पर देखें अगर तो सभी के मन में उत्साह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी उनके साथ कदम ताल करते हुए चलते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ राज्यसभा और लोकसभा सांसद भी हैं जो नारेबाजी भी कर रहे हैं। सभी के चेहरे पर एक नया उत्साह है और एक नई एनर्जी है इस सत्र को लेकर के। अगर संसद के विशेष सत्र की बात करें तो हर बार ये सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। देश के तमाम जो मुद्दे हैं उन्हें सदन में पेश किया जाता है, उन पर चर्चा की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है। कई बार सदन हंगामेदार भी रहता है, लेकिन इस बार जो है ये सत्र बेहद ही विशेष माना जा रहा है और बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसका कारण भी आपको हम बता चुके हैं कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि अब जो है सत्र की शुरुआत नए संसद भवन के साथ होगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, नए संसद की ओर सभी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कदमताल मिलाते हुए चलते नजर आ रहे हैं। कई सारी महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही थी, जहां उनके चेहरे पर और उनकी बातों पर एक और उत्साह नजर आ रहा था नए संसद भवन में प्रवेश को लेकर के और सत्र की शुरुआत को लेकर के। तो वहीं कहीं ना कहीं भावुकता भी नजर आ रही थी और उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र पुरानी संसद को लेकर भी किया। उन्होंने कहा कि पुरानी संसद को कभी भी भूला नहीं जाएगा। कई सारे ऐसे विशेष मुद्दे हैं देश के जिनको लेकर के सदन में प्रस्ताव पारित हुआ, चर्चा हुई, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर किया था। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उनके साथ राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह जो है वो कदमताल मिलाते हुए नए संसद भवन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो संविधान सदन से नई संसद का यहां पर अब शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कदमताल मिलाते हुए सभी सांसदों के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई थी और पूरे देश में उन्होंने एनर्जी डालने का काम किया था और ये कहा था कि टॉप 3 यानी कि सभी देशों में टॉप 3 में भारत अपनी जगह बनाकर रहेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी जो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर बनने के लिए यानी कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए दल नहीं बल्कि दिल की जरूरत होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कि हमने आपको बताया था कि भावुक नजर आए थे और अपने संबोधन में उन्होंने देश को लेकर के कई सारी बातें की थी। फिलहाल आपको बता दें कि नए संसद भवन का आज श्री गणेश हो रहा है और ये सभी सांसद जो है लोकसभा राज्यसभा सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नए संसद भवन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। श्री गणेश हो रहा है, बेहद ही खास है आज का दिन, कई मायनों में खास है। अगर बात करें तो आज गणेश चतुर्थी की भी शुरुआत हो रही है और नए संसद भवन की भी शुरुआत हो रही है। कार्रवाई भी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए सभी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जेपी नड्डा के साथ, राजनाथ सिंह के साथ और गृह मंत्री अमित शाह के साथ कदमताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो महिला सांसदों की अगर हम बात करें तो सभी भारतीय वेशभूषा में यहाँ पर नजर आ रही है और जैसा कि भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी भी काम की शुरुआत, किसी भी नए भवन की शुरुआत जो है वो पूजा पाठ के साथ होती है। तो इस बार भी पूजा पाठ के साथ नए संसद भवन की शुरुआत हुई। तो आगे भी सदन की कार्रवाई को लेकर के हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो सीधी तस्वीर अब आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट नई संसद भवन के लेकर हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए जहां पे सभी सांसद जो है राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद के साथ ही सभी दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी अग्रवाल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है माफ कीजिएगा वो पहुंच चुके हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं।
माननीय सदस्यगण, आज हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें संसद के पुराने और नए दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों के सम्यक निर्वहन का अवसर मिला। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर हमें मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम सबके लिए शुभ दिन है। मैं सभी को भी गणेश चतुर्थी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, आज हम अपने देश के उन संस्थापकों, राष्ट्र निर्माताओं को स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, जिनके संघर्ष एवं बलिदान के कारण हमें आज़ादी मिली। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो जनता को केंद्र में रखकर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों की प्रगति को सुनिश्चित करता है। माननीय सदस्यगण, जो हमारी श्रेष्ठ संसदीय परंपराएं, परिपाटियां और अनुभव रहे, हम इस नए भवन में उन श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे अच्छे अनुभव रहे उनको आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे अच्छे अनुभव नहीं रहे उन अनुभवों को त्याग करेंगे। ये हम संसद की उच्च मर्यादा प्रतिष्ठा कायम करें। हम नए भवन में नए विचारों के साथ लोकतंत्र की संस्कृति को, चर्चा संवाद की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित करें। हम सदन में शालीनता और मर्यादा से अपने विचारों को रखें। सहमति असहमति लोकतंत्र का मूल मंत्र है, किंतु हम उसे गरिमा के साथ व्यक्त करें, मुद्दों पर चर्चा करें। हमारा यह सदन स्वस्थ चर्चा और संवाद का केंद्र बने। हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने देश हित में एक साथ मिलकर बड़े फैसले लिए हैं। मुझे आशा है इस सदन में भी हम उसी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि नए भवन में हम एक ऐसे प्रतिमान स्थापित करें जिससे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा और मजबूत हो। आज हमारे सदन की गतिविधियों को सूचना प्रौद्योगिकी और नई तकनीक के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। इसलिए हम इस नए भवन में देश की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप जनता के विश्वास और भरोसे को जीतने का प्रयास करें। उनके मुद्दे, उनकी आकांक्षाओं को जिम्मेदारी के साथ मर्यादित तरीके से सदन में रखें। माननीय सदस्यगण, सदन के सुचारू संचालन में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहा है। मुझे आशा है नए संसद भवन में भी, इस कक्ष में भी अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को लागू करते हुए आप मुझे सहयोग करेंगे और सदन को सुव्यवस्थित नियमों, प्रक्रियाओं से चलाने में मेरा सहयोग करेंगे। हमारा यह भवन हमारी विरासत, विविधता और आधुनिकता का भव्य संगम है। रिकॉर्ड समय में इस भवन का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं भवन के निर्माण में योगदान के लिए भारत सरकार, लोकसभा सचिवालय और श्रमवीर कर्मयोगियों को भी इस हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है आज गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नए सपने के साथ संसद की कार्रवाई शुरू करेंगे। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह सदन को संबोधित करें।
आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन का ये प्रथम और ऐतिहासिक सत्र है। मैं सभी माननीय सांसदों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में नए सदन में आपने मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस नए संसद भवन में मैं आप सभी माननीय सांसदों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। ये अवसर कई मायनों में अभूतपूर्व है। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विज्ञान जगत में चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है। सुखद संयोग है कि ये गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। गणेश जी शुभता और सिद्धि के देवता है। गणेश जी विवेक और ज्ञान के भी देवता है। इस पावन दिवस पर हमारा ये शुभारंभ संकल्प से सिद्धि की ओर एक नए विश्वास के साथ यात्रा को आरंभ करने का है। आजादी के अमृत काल में हम जब नए संकल्पों को लेकर के चल रहे तब अब जब गणेश चतुर्थी का पर्व आज है तब लोकमान्य तिलक की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आजादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक गणेश उत्सव के रूप में प्रस्तावित करके पूरे राष्ट्र में सुराज्य की आहलेख जगाने का माध्यम बनाया था। लोकमान्य तिलक जी ने गणेश पर्व से सुराज्य की संकल्पना को शक्ति दी। उसी प्रकार से आज ये गणेश चतुर्थी का पर्व लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्र भारत स्वराज्य की बात कही थी। आज हम समृद्ध भारत गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर उसकी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी देशवासियों को इस अवसर पर फिर एक बार मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज
संवत्सरी का भी पर्व है, संवत्सरी का भी पर्व है। ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमा वाणी का भी पर्व कहते हैं। आज मिच्छामी दुक्कड़म कहने का दिन है। ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ, पूरे हृदय से आप सभी को, सभी सांसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामी दुक्कड़म। आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। इस स्पिरिट के साथ जब हम यहां से हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे देश के लिए, राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए वो प्रेरणा का कारण बनना चाहिए और हम सबको इस दायित्व को निभाने के लिए भरसक प्रयास भी करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भवन नया है, यहाँ सब कुछ नया है, सारी व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ तक आपके सब साथियों को भी आपने एक नए रंग रूप के साथ प्रस्तुत किया है। सब कुछ नया है, लेकिन यहाँ पर कल और आज को जोड़ती हुई एक बहुत बड़ी विरासत का प्रतीक भी मौजूद है। वो नया नहीं है, वो पुराना है और वो आजादी की पहली किरण का स्वयं साक्षी रहा है जो आज अभी हमारे बीच उपस्थित है। वो हमारे समृद्ध इतिहास को जोड़ता है और जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र का जब ये नया गृह प्रवेश हो रहा है तो यहाँ पर आजादी की पहली किरण का साक्षी जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत को उसके साथ सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है। और हम सभी माननीय सांसदों को हमेशा जो पवित्र सेंगोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था, वो आज हम सबकी प्रेरणा का कारण बन रहा है। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत के
महिमा को भी मंडित करती है। हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कामगारों, उनका पसीना इसमें लगा है और कोरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है, क्योंकि मुझे कार्य जब चल रहा था तब उन श्रमिकों के बीच आने का बार बार मौका मिलता था और खास करके मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनसे मिलने आता था। लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया। आज मैं चाहूँगा कि हम सब हमारे उन श्रमिकों का, हमारे उन कामगारों का, हमारे इंजीनियर्स का हृदय से धन्यवाद करें, हृदय से, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला है। और 30,000 से ज्यादा श्रमिक बंधुओं ने परिश्रम किया है, पसीना बहाया है इस भव्य व्यवस्था को खड़ी करने के लिए और कई पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन श्रमयोगियों का नमन तो करता ही हूं, लेकिन एक नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है, इसका मुझे अत्यंत आनंद है। इस सदन में एक डिजिटल बुक रखी गई है, जिस डिजिटल बुक में उन सभी श्रमिकों के पूरा परिचय इसमें रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि हिंदुस्तान के किस कोने से कौन श्रमिक ने आकर के इस भव्य इमारत को, यानी उनके पसीने को भी अमरत्व देने का प्रयास इस सदन में हो रहा है। ये एक नई शुरुआत है, शुभ शुरुआत है और हम सब के लिए गर्व की शुरुआत है। मैं इस अवसर पर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से, मैं इस अवसर पर लोकतंत्र की महान परंपरा की तरफ से हमारे इन श्रमिकों का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ कहा जाता है यद भावो तद भवति, और इसलिए हमारा भाव जैसा होता है वैसे ही कुछ घटित होता है। यद भावो तद भवति, और इसलिए हम जैसी भावना करते हैं और हम जैसी भावना करके प्रवेश किया है, मुझे विश्वास है भावना भीतर जो होगी हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे और वो बहुत बड़ी स्वाभाविक है। भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च स्थान है। ये संसद दल हित के लिए नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी पवित्र संस्था का निर्माण दल हित के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए किया। नए भवन में हम सभी अपने वाणी से, विचार से, आचार से संविधान के जो स्पिरिट है उन मानदंडों को लेकर के, नए संकल्पों के अनुसार नई भाव को लेकर के, नई भावना को लेकर के मैं आशा करता हूं। अध्यक्ष जी, आप कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, कभी स्पष्ट कह रहे थे, कभी थोड़ा लपेट कर भी कह रहे थे, हम सांसदों के व्यवहार के संबंध में मैं मेरी तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा और मैं चाहूंगा कि सदन के नेता के नाते हम सभी सांसद आपकी आशा अपेक्षा में खरे उतरें। हम
अनुशासन का पालन करें। देश हमें देखता है, आप जैसा दिशा निर्देश करें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अभी चुनाव तो दूर है और जितना समय हमारे पास बचा है इस पार्लियामेंट के, मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, और जो यहां आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है, सम्यच्च सब्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया, अर्थात हम सब एक मत होकर, एक समान संकल्प लेकर कल्याणकारी सार्थक संवाद करें। यहाँ हमारे विचार अलग हो सकते हैं, विमर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे संकल्प एकजुट ही होते हैं, एकजुट ही रहते हैं, और इसलिए हमें उसकी एकजुटता के लिए भी भरपूर प्रयास करता रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी संसद ने राष्ट्र हित के तमाम बड़े अवसरों पर ही इसी भावना से काम किया है। न कोई इधर का है न उधर का है, सब कोई राष्ट्र के लिए करते रहे। मुझे आशा है कि इस नई शुरुआत के साथ इस संवादीय के वातावरण में और इस संसद के पूरे डिबेट में हम उस भावना को जितनी ज्यादा मजबूत करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को अवश्य हम प्रेरणा देंगे। संसदीय परंपराओं की जो लक्ष्मण रेखा है, उन लक्ष्मण रेखा का पालन हम सबको करना चाहिए, और वो स्पीकर महोदय की अपेक्षा को हमें जरूर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में राजनीति, नीति और शक्ति का इस्तेमाल ये समाज में प्रभावी बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, और इसलिए स्पेस हो या स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप्स हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, हर क्षेत्र में दुनिया भारतीय महिलाओं की ताकत देख रही है। G20 की अध्यक्षता, विमेन लेड डेवलपमेंट की चर्चा आज दुनिया इसका स्वागत कर रही है, स्वीकार कर रही है। दुनिया समझ रही है कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बात इनफ नहीं है, हमें मानव जाति की विकास यात्रा में उस नए पड़ाव को अगर प्राप्त करना है, इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है।
आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही है, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान। योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में, उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, आग्रह भी करता हूं, और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों से, दोनों सदन के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस नए सदन के प्रथम सत्र में मुझे आपने मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर, सर्वप्रथम हमारे लोकसभा की स्पीकर, हमारे अभिभावक, आपको
सबकी तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि आप ये नए सदन में आज नया शुरुआत करने का पहल किए हैं और इसके साथ साथ हमारे देश के हर नागरिकों को गणेश चतुर्थी की बधाई भी देना चाहते हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष हम सब मिलकर देश को आगे ले जाएंगे, देश की ताकत को और मजबूत करेंगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं मंजिल की पार कर नया मंजिल की तलाश कर, तुझे अगर दरिया मिल जाए तो समुंदर की तलाश कर। ये हिंदुस्तान एक दिन में नहीं बने, हजारों लाखों शहादतों की चलते खून पसीना बहाने की चलते हमारे देश आजाद हुई थी और इसलिए सारे सदन की तरफ से उन सारे हमारे देश की आजादी लाने में जो अपना खून पसीना बहाया, मेहनत की, दिन रात एक करते हुए देश को ब्रिटिश हुकूमत से निकल के आजादी की रास्ते ले गए थे, उन सबको भी नमन करता हूं। ये नए